تو بالآخر مراد سعید کے حوالے سے بہت بڑی خبر آ چکی ہے اور مراد سعید نے نظام کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ اس وقت کانپیں ٹانگنے کا باضابطہ باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کا ایجنڈا نمبر 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کے حوالے سے ہے۔ یہ خبر کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور مجھے اندازہ تھا اور کچھ انفارمیشن تھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں ان کے خلاف جو کچھ بھی کراچی کے اندر کراچی یونیورسٹی میں کیا گیا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اور اب ایک بہت بڑا سرپرائز پاکستان کی عدلیہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایجنڈا نمبر 3 ہماری ویڈیو کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو کہ ابھی تک لاپتہ ہیں محمد اکرم، ان کے حوالے سے ہے جن پر نئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز بہت امپورٹنٹ اور بہت الارمنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، آج بروز سوموار 2 ستمبر 2024 بڑی اہم اپڈیٹس ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایکسٹینشن نہ لینے کی قلعی ہے وہ بیچ چوراہے کھل چکی ہے اور بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ انوکھے لاڈلے بن چکے ہیں جو کھیلن کو چاند مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس سب میں جو ساری نظریں ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہیں۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، ویسے ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت کچھ جو ہونا چاہیے تھا ماضی میں نہیں ہوا۔ لیکن اب چونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب بے بس ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز ایک طرف ہیں اور عامر فاروق صاحب ایک طرف ہیں، تو اب جو کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو جس پر قاضی صاحب جو ہیں وہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت کچھ نہیں کر رہے اور ایک ریمارکس دے کر وہ بالکل سائیڈ پہ ہو گئے کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے اس کے جج نے بھی خط لکھا، جسٹس بابر ستار نے بھی قاضی صاحب کے دور کے اندر مداخلت کے حوالے سے نیا خط لکھا، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ اس سے نظریں چرا رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری خط لکھنے والے ججز جو ہیں ان میں بھی شامل تھے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ٹریبیونلز ہیں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے اس کے جج بھی ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ہٹوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، پوری واردات ڈالی گئی، لیکن الیکشن کمیشن کا وہ پلان فیل ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ریورس ہوا اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری پر دوبارہ سے پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا گیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری چونکہ ڈٹ چکے ہیں اور اگر یہ شہر اقتدار کی کیپٹل کی 3 سیٹیں اڑ جاتی ہیں جو کہ میرٹ پر اڑنی ہیں تو نہ تو الیکشن کی کریڈیبلٹی بچے گی، نہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی کریڈیبلٹی بچے گی اور نظام کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ یہ حلقے جو ہیں دیکھیں میں نے اتنا کچھ آپ کے لیے کیا، یہ حلقے جو ہیں یہ ریورس نہیں ہونے چاہیے ورنہ میری پیچھے کچھ نہیں بچے گا، پلے جو ہے وہ کچھ نہیں بچے گا۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کی 40 سال پہلے کی کہ جی ان کی لاء کی ڈگری جعلی ہے، اس حوالے سے پہلے پروپیگنڈا کروایا گیا، توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے، ایک پوری کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی۔ پھر کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی انرولمنٹ منسوخ اور ڈگری جعلی جو ہے اس کا فیصلہ کروایا، اور وہ شکر یہ ہوا کہ پروفیسر ریاض جو ہیں انہوں نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کو بار بار یہ بات جو ہے آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں، اور کل سے جو میرے لوگ ولاگ دیکھ رہے ہیں بلکہ پرسوں رات سے جب پروفیسر ریاض صاحب نے انکشاف کیا اور پھر کل یہ خبر آئی کہ جی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے سنڈیکیٹ نے وہ فیصلہ دے دیا ہے جو فیصلہ نظام چاہتا ہے، جو فیصلہ نظام کروانا چاہتا ہے، تو اس سب کے اندر جو میرے پاس اطلاع پہنچی وہ یہی تھی اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک فل کورٹ بیٹھی تھی اور اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ایک تو ایجنسی کا کوئی بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں آئے گا، دوسرا اگر کسی ایجنسی کے بندے نے کسی جج سے رابطہ کیا نا تو اس ایجنسی کے سربراہ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں گے، تیسرا یہ کہ اب اگر ایک جج کو بھی نشانہ بنایا گیا تو ون فار آل اینڈ آل فار ون کی پالیسی کے تحت وہ جج جواب نہیں دے گا، پورا ادارہ جاتی رسپانس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور اب ایک بہت بڑا سرپرائز تیار ہے اور یہ غیر معمولی معاملہ ہے اور اس سب کے اندر جو اطلاعات ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت فل کورٹ جو ہے وہ بلا لی گئی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف مہم کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فل کورٹ کے سامنے 19 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس میں obviously یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کی پروسیڈنگز نہ آئیں، اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروفیسر ریاض جو ہیں وہ اس میں نہ انٹر ہوں اس پورے ایشو کے اندر، اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس سسٹم کے کرتا دھرتا جو ہیں ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ This is
100% कंफर्म्ड। और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है काजी साहब के एक्सटेंशन वाले राना सनाउल्लाह के इंकशाफ से भी बड़ी, कि काजी साहब कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर सारे अफसरान की, सारे जजेस, सारे जर्नैल, सारे टॉप के ब्यूरोक्रेट्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाते हैं तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है। अनोखा लाडला खेलने को चांद मांग रहा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, काजी साहब को एक्सटेंशन भी मिल जाए और तवज्जो लोगों की, जारी बात है आप ये देखें कि सबकी मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो काजी साहब की एक्सटेंशन ज्यादा, तो चीफ की एक्सटेंशन, जो आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन पे बात होना शुरू हो जाएगी। तो काजी साहब कह रहे हैं कि हम सब एक ही कश्ती में सवार हो जाए फिर मैं कबूल करूंगा, ऐसे नहीं कबूल करूंगा। तो काजी साहब की छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम अब जरा आगे बढ़ते हैं। एजेंडा नंबर 2 जो है हमारी वीडियो का, उस पर आते हैं। मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, अडियाला जेल के, लापता हैं और 14 अगस्त से लापता हैं। उनके घर से उन्हें उठाया गया और एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी अहलिया जो है उन्होंने दरखास्त दी हुई है बाजियाबी की, वहीं दूसरी जानब कहा जा रहा है कि वो लापता हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि जी कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है मोहम्मद अकरम। अगर तहवील में है तो भाई पेश करो, पेश करते हो तो फिर वो रिमांड हो या कुछ भी हो, लेकिन लीगल प्रोसेस में तो आए, लेकिन वो गायब है। अब इस सब के अंदर दिहाइयां जो है वो अपने इस इदारे को, जेल खाना जात के महकमे को देने के बाद मोहम्मद अकरम के साथ रिसेंटली क्या हुआ, मोहम्मद अकरम की अहलिया जो कि हमला है, वो अपने जो बच्चे हैं उनके साथ उन्हें नोटिस दे दिया गया सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की तरफ से कि घर खाली करो। अब अडियाला जेल की जो सुपरिटेंडेंट है, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम जो कि लापता है, उनके साथ एक और वारदात डाल दी गई है। पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने अडियाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोहम्मद अकरम को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और मोहम्मद अकरम को शोकाज 29 फरवरी को अडियाला जेल में कैदियों की लड़ाई पर जारी किया गया। होम डिपार्टमेंट ने मोहम्मद अकरम से शोकाज का जवाब 7 दिन में तलब किया। नोटिस के मुताबिक कैदी ने ईंट मारकर साथी कैदियों को जख्मी किया और एक को हलाक किया। इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गफलत और लापरवाही साबित हुई। नोटिस में कहा गया कि 5 ज़हनी बीमार कैदियों को एक जगह रखकर जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। मोहम्मद अकरम ज़हनी बीमार कैदियों के लिए इकदाम करने और अलग से सेल में रखने में भी नाकाम रहे। नोटिस के मतन में कहा गया कि जूनियर साइकोलॉजिस्ट सारा गजनफर और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट सुनिया शहजाद ने भी मुलजिम के खतरनाक ज़हनी हालत की तस्दीक की। मोहम्मद अकरम ने जेल कवानीन 401, 435, 436, 442 और 1095F की खिलाफ वर्जी की और वो जेल में दयानतदारी और संजीदगी से ड्यूटी देने में नाकाम रहे। अब ये हुआ क्या है, मामला क्या होना है जी मोहम्मद अकरम के साथ। 14 अगस्त से लापता साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को पुरानी इंक्वायरी में नौकरी से बर्खास्त और भारी जुर्माने की सिफारिश कर दी गई है। 30 अगस्त को होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से लापता अकरम के नाम शोकाज नोटिस जारी। लापता अकरम को 7 रोज में शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इससे कबल लापता अकरम के नाम नोटिस जारी हुआ था कि ऑफिसर कॉलोनी का घर खाली करें, आपकी अडियाला जेल से ट्रांसफर हो चुकी है, यू हैव टू लीव दिस हाउस इमीडिएटली। उनकी फैमिली को यह कहा गया। तो ये आप यहीं से अंदाजा कर लें कि सूरत हाल कितनी अजीब है, सूरत हाल कितनी खराब है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस वक्त जो मौजूदा अडियाला जेल के अंदर लोग हैं, आज की ही एक और खबर आपके सामने रख दूं जिससे निजाम एक्सपोज हो। अब ये खबर जियो दे रहा है कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैदियों में झगड़ा हो गया और एक हवालाती ने कटर के वार से दूसरे हवालाती को शदीद जख्मी कर दिया। यानी ये वाकया तो आज भी हो गया और अभी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं या फिर सुपरिटेंडेंट आपने लगाए हैं, क्या उनके खिलाफ भी इस तरह की इंक्वायरी चलेगी? नहीं, उनके खिलाफ इस तरह की इंक्वायरी तब चलेगी जब वो निजाम के साथ कॉपरेट करने से इनकार करेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी अपडेट है, फिर मुराद सईद वाले इशू पर आते हैं। एहतसाब अदालत ने नए तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसीह कर दी है। बेसिकली इमरान खान और बुशरा बीबी को इस नए केस में अरेस्ट किया गया जब उनकी सारी सजाएं मुअत्तल हुई। फिर जो यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस जारी किया था कि जिस्मानी रिमांड 14 के बजाय 40 दिन होगा, तो 36 दिन तक का तकरीबन 36 दिन का रिमांड जो है, जिस्मानी रिमांड इमरान खान और बुशरा बीबी का हुआ। उसके बाद जुडिशल पर थे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, इसमें जमानत बाद गिरफ्तारी की भी दरखास्त दी हुई थी। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो यह है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत की, जिस सिलसिले में उनके वकला और नायब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि तोशाखाना का नया रेफरेंस पहले रेफरेंस जैसा ही है, एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंसेस नहीं बनाए जा सकते। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है नया रेफरेंस पहले से मुशाबहत रखता है या नहीं। इस दौरान नायब प्रोसिक्यूटर ने तोशाखाना के पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड मंगवाने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बाद एहतसाब अदालत ने नए रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसीह करते हुए केस की मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। तो ये भी एक अलार्मिंग चीज है, ये जरा जहन में रखिएगा। अब मुराद सईद ने किस तरह से छक्के छुड़ाए हैं। मुराद सईद इमरान खान का वो बावफा साथी है जो अभी तक लापता है। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत होने के बावजूद मुराद सईद साहब को इतना खतरा है और मुराद सईद सिस्टम के आसाब पर इतना शदीद हावी है कि मुराद सईद इस वक्त अपनी रूपोशी खत्म नहीं कर सकता और अल्लाह ताला मुराद सईद की हिफाजत करे। मुराद सईद का आपने देखा होगा कि इस हद तक वो अंडरग्राउंड है कि बहुत मुश्किल से एक मरतबा मुराद सईद का वॉइस नोट आया था, वीडियो भी नहीं, वरना आप प्लेन वाइट बैग
दीवार के आगे बैठ के वीडियो बना सकते हैं, नहीं वो भी नहीं आई कि कहीं लोकेट ना हो जाए। ऑडियो या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में, वो भी मुतअद्दिद चैनल से होता हुआ फिर ट्वीट के तौर पे आता है, वो भी बड़े बड़े अरसे के बाद। और इस सब के अंदर मुराद सईद जो है उनके ऊपर जो कांटा लगा हुआ है वो इमरान खान से भी शदीद है, उसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं। लेकिन अब यहां पर जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को खबर दे दी गई है वो यूं लग रहा है कि मुराद सईद जो है वो सिस्टम के आसाब पर हावी है। 9 मई से रोपोश पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। अब ये जियो क्या खबर दे रहा है जी कि पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद सईद रोपोशी के बावजूद केपी हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल हैं। यानी कि मुराद सईद रोपोश हैं, लेकिन पार्टी के और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहम तरीन फैसले अभी भी मुराद सईद के हाथ में हैं, जिनमें वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद दीगर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर, उन सब से राब्ते हैं। पार्टी ज़राए ने कहा कि रोपोश मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की, जबकि मुराद सईद ने अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द अमल देने पर आमादा किया। पार्टी ज़राए ने मजीद बताया कि पीटीआई केपी के पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात के पीछे मुराद सईद का किरदार है। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात कराने पर मशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद को 9 मई केसेस में इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया, वो ताहाल रोपोश हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि मुराद सईद के खिलाफ इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो किए जाने का मतलब यही है कि मुराद सईद जो है वो इमरान खान का बावफा साथी है और अभी तक डटा हुआ है। और आपको मैं ये बता दूं, पीटीआई के किसी वोटर सपोर्टर या किसी पीटीआई के वर्कर से पूछें आप, वो आपको बताएगा कि उनके लिए मुराद सईद क्या है। पीटीआई में इमरान खान के का तो एक अलग ही मकाम है, लेकिन उसके बाद अगर किसी के लिए जो जगह एक मुख्तस है पीटीआई के कारकुनान के दिल में, वो मुराद सईद है। और लोगों को मुराद सईद की वफादारी पर किसी किस्म का कोई 1% भी शक नहीं है। तो मुराद सईद के वाले से हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुराद सईद ने सिस्टम के छक्के छुड़ा दिए और अब ज़राए के वाले से ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।